آئیے میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی معرفت انجیلی بیان، ایک ہی واقعہ ہم دونوں اناجیل میں سے تلاوت کریں گے۔ ابھی جب بھائی شہزاد یہاں پر گواہی بتا رہے تھے اپنے ایگزام کے تعلق سے، کس طرح ان کا پہلا پیپر جو ہے وہ ویک ہوا، تو پچھلے دنوں یہ گواہی ایک دو جگہ پر مجھے سنانے کا موقع ملا۔ بارہا میں نے لوگوں کو اس کے تعلق سے بتایا۔ جب میرا ایف اے کا ایگزام تھا تو میرے ساتھ کیا ہوا، اگر کسی شخص کو کسی پیپر کے اندر سارے سوال آتے ہوں تو کتنے مارکس آنے چاہیے، کتنے نمبر آنے چاہیے؟ 100%۔ انگلش کا پیپر تھا میرا، اور اس پیپر کے اندر 6 سوال تھے۔ 6 سوالوں کے اندر بھی آپشن تھی اے کریں یا بی کریں، مطلب 12 سوال ہو گئے، اور وہ 12 کے 12 سوال مجھے آتے تھے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سارے پیپر کے اندر میرے نمبر 0 تھے۔ بلیو کریں، شاید آپ سمجھیں یہ جھوٹ ہے، یہ مذاق ہے، یہ شاید خیال ہے، یہ کوئی ایسی ہی بات ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ مجھے وہ سارا پیپر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس امتحان میں میرا 0 مارکس۔ کوئی مانے گا نہیں، کہے گا جھوٹ بول رہے بندہ، لیکن ایسا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا میرے پٹھے کھچ رہے تھے، اور میری پنڈلیاں لٹرلی اتنی موٹی سوچ کر ہو گئی پریشانی سے، اور میں بہت رویا جب میں گھر آیا۔ خیر مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ اگلی دفعہ جب میں نے اسمبلی کا پیپر دیا، مزے کی بات میں اس میں بھی فیل ہو گیا۔ پھر 3rd ٹائم لاسٹ چانس تھا، تو اگر اس دفعہ پھر رہ جاتا تو پھر سارے جو تھے پیپر دینے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پیپر دینے جاتا میں نے اپنا داخلہ وغیرہ جمع کروا دیا تھا، رول نمبر سلپ آ چکی تھی۔ یہاں پر قریبی RFI اسکول ہے گورنمنٹ کا، وہاں پر میرا سینٹر بنا اس دفعہ۔ تو جب میں وہاں پر پیپر دینے مجھے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور صبح سے شام تک روتا رہا۔ میں کہ خدا کی ہوا پھر نہ لسنا کیوں ہوا، مینوں دس کی وجہ۔ صبح سے شام تک روتا رہا، میں نہیں اٹھا، کھانا نہیں کھایا، واش روم نہیں گیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں بیٹھا رہا روتا رہا۔ شام کے 6 ساڑھے 6 بجے آسمان کھلا میرے لیے۔ ایک بات آئی، ایک جملہ آیا، جتنا میں سارا دن میں رویا اس سے زیادہ اس کے بعد رویا، اور وہ بات یہ تھی کہ بیٹا تو مجھ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور آپ بلیو کریں کہ میں بہت رویا۔ میں کہا خداوند، میں اس بات کے لیے پہلی بات تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بتایا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کا بھروسہ کرے زندگی کے کسی بھی ایریا کے اندر۔ اور جب میں نے وہ خداوند سے پیغام لیا، اب میرے دل کے اندر اطمینان تھا کہ اب کچھ بھی ہو مجھے پریشانی نہیں ہے۔ تو جب ہم اسکول میں تھے، میٹرک کے ایگزام دیے 96 میں نے، تو ٹیچرز جو ہیں وہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پیپر کے اندر کٹنگ نہیں کرنی، اس کے نمبر کٹتے ہیں۔ یہ بیڈ امپریشن ہے ٹیچر کے لیے، جب وہ دیکھے گا ایگزامینر آپ کے پیپر کو تو وہ آپ کو نمبر بہت کم دے گا۔ بلیو کریں، یہ 3rd ٹائم جب میں پیپر دینے گیا تو وہ اتنی زیادہ کٹنگ تھی کہ پڑھنا تو دور، شاید دیکھ کر ہی اسے پھاڑ دیتا ٹیچر۔ لیکن اس بار چونکہ میں خدا پر بھروسے کے ساتھ گیا تھا، اس بار میں پاس ہو گیا۔ پھر جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیے میرے ساتھ مرکز کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مرکز کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 5واں باب 21 آیت سے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا، اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا، اور اس سے یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ دیکھیے لوکا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 9واں باب، اس کی 40ویں آیت سے یہی واقعہ ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا، اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ آمین۔ کلام کا حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ یہودیوں کا ایک سردار ہے یائر، اور یہ فقط یہودی ہی نہیں بلکہ عبادت خانے کا سردار ہے۔ ایک بزرگ شخص ہے، عمر رسیدہ ہے، اور عبادت خانے کا سردار ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے جو 12 برس کی ہے۔ اس کی ایک
बेटी है जो इकलौती है, और वो कितने साल की है? बुढ़ापे की औलाद है और एक ही है, इकलौती है, और वो कलाम में लिखा है कि मरने के करीब है। यकीनन जब यायर को पता चला कि उसकी इकलौती बेटी जो बीमार है, तो एक तबीब से दूसरे तबीब में हम शुरू में इग्नोर करते हैं। जब बीमारी घर में आए तो हम इग्नोर करते हैं, लाइटली लेते हैं, इसको हल्का सा लेते हैं। लेकिन हुआ यूं, ये डे बाय डे बीमार होती चली गई, और ये बीमार इस कदर हो गई कि इस बीमारी से वो मरने के करीब आ गई। यही वाकया जब मत्ती की मार्फत इंजीली बयान में पढ़े हैं 9वें बाब के अंदर, वहां पर भी लिखा है, वहां पर लिखा है कि यायर आकर कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो जिंदा हो जाए। यायर को पता है कि उसकी बेटी जो है वो अब बिल्कुल करीबुल मर्ग है, शायद अगले लम्हे उसकी डेथ हो जाए, शायद उससे अगले लम्हे इसकी डेथ हो जाए। यार चूंकि उम्र रसीदा शख्स है, इसने बहुत से लोगों को मरते देखा है, बहुत से लोगों को दफनाया है, कफनाया है। हमने भी बहुत से लोगों को दफनाया, कफनाया, हमने देखा, बहुत से लोगों को हम कब्रिस्तान तक छोड़ कर आए, कोई हमें भी लेकर जाएगा, ऐसा वक्त आएगा। इस शख्स के लिए ये बड़ी दुख वाली बात थी कि इसकी इकलौती बेटी है। ये अच्छे से अच्छे तबीब के पास गए, अमीर शख्स था, इबादत खाने का सरदार था, पैसे की कमी नहीं थी, इसने अच्छे से अच्छे तबीब को भी दिखाया, लेकिन इसकी बेटी के बजाय ठीक होने के बीमारी जो है वो और बिगड़ती चली गई। और जब ये बीमारी इस कदर बिगड़ गई कि वो मरने के करीब आ गई, तो यार इसके दौर में इसको पता था कि यीशु मौजूद है, इसको पता था यीशु मौजूद है, यीशु बीमारों को शिफा देता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को टांगे देता है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। इसने बहुत कुछ यीशु के ताल्लुक से सुन रखा है। ये जानता है यीशु को। ये क्यों जानता है यीशु को? क्योंकि ये यहूदी सरदार है, और ये वो शख्स है जिसने खुद भी यीशु की मुखालफत की, क्योंकि यहूदियों के ज्यादातर सरदार जो थे वो यीशु की मुखालफत करते थे। वो इसलिए मुखालफत करते थे क्योंकि यीशु सब्बत के दिन लोगों को शिफा देता था। यीशु ऐसे काम करने के लिए कहता था जो सब्बत के दिन रवा नहीं, इसलिए यहूदी यीशु से नाला थे, रंजीदा थे। लेकिन ये शख्स जब यीशु के पास आया तो कलाम में लिखा है, एक जगह पर वो कदमों पर गिरा, फिर लिखा है मत्ती की मार्फत इंजीली बयान में उसने सिजदा किया। और जब ये शख्स आया तो मत्ती की मार्फत जब हमने पढ़ा तो झील के किनारे जहां रेत है वहां ये यीशु के कदमों में आकर लोटपोट होने लगा, लेटने लगा, रोने और चिल्लाने लगा। यहूदी सरदार, एक शख्स जो खुद इल्म से भरा हुआ है, जो खुद यहूदी तालीम से वाकिफ है, शरीयत के सब अहकाम को वो जानता है, उसके लिए ये बात मानना कि वो किसी और के पास जाए कुफ्र से बढ़कर और कुछ नहीं। ये यहूदी सरदार है। जब ये यीशु के पास आता है तो कलाम में लिखा ये उसके कदमों में गिरता है, बहुत मिन्नत करने लगा। ये क्यों मिन्नत करने लगा? क्योंकि इसकी इकलौती बेटी थी। इसको ये डिसाइड करना था कि वो यहूदीज़म के साथ चलेगा, कि वो यीशु के पास जाएगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। इससे पहले कि वो यीशु के पास आता, उसके अंदर ये जंग जारी थी, उसके अंदर ये शोर बरपा था, उसके अंदर ये हलचल थी, ये बात लहरों की तरह उठी हुई थी कि वो यीशु के पास जाए कि ना जाए। अगर वो यीशु के पास जाएगा तो बाकी यहूदियों को क्या मुंह दिखाएगा? बाकी यहूदी क्या कहेंगे? लोगों को वो क्या तालीम देगा? वो क्या बताएगा कि मैं तो किसी और बात की तालीम देता था, अब मैं खुद किसी और के पीछे चल पड़ा हूं। लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए इस बात को डिसाइड कर लिया, उसे ये मौका मिल गया, उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यीशु की जात के ऊपर गौर कर सके। इससे पहले कि वो यीशु के पास आए, उसने यीशु की जात के ऊपर गौर किया। अगर वो यीशु की जात के ऊपर गौर ना करता तो वो कभी भी उसके कदमों में आकर उससे सिजदा नहीं कर सकता। एक यहूदी के लिए ये कुफ्र है कि वो खुदा के सिवा किसी को सिजदा करे। एक यहूदी के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि वो खुदा को तरक कर दे। लेकिन इसने ये डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने यीशु की जात को देखना शुरू किया, इसने यीशु को फोकस करना शुरू किया अपने ख्यालों के अंदर कि इसकी मानंद और कौन है जो ऐसे बड़े मौजे दिखा सके। इस जैसा और कोई नहीं। बथेरे नबी आए, बथेरे पैगंबर आए, उन्होंने पैगाम दिया,
मसीहा का, लेकिन हकीकी मसीहा यही है। इसने जब सोच लिया, इसने जब अपने अंदर मान लिया, इसने जब कबूल कर लिया, फिर ये भागा हुआ बूढ़ा शख्स जाता है, लोगों की परवाह नहीं करता। लोग देख रहे हैं बूढ़े शख्स को। आज इस बूढ़े शख्स को क्या हो गया है, ये क्यों भागा हुआ जा रहा है? लोग आवाजें दे रहे हैं पीछे से इसे, यार यार क्या हुआ? वो किसी की नहीं सुन रहा, वो भागा जा रहा है और वो यीशु के पास जाकर उसके कदमों के आगे गिर जाता है और वो लोट पोट होता है, वो रोता चिल्लाता मातम करता है, ऐ यीशु मुझे माफ कर दे, ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी जो 12 वर्ष की है वो करीब मर गया है, वो मरने के करीब है, आ तू मेरे घर आ, तू अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो जिंदा हो जाए, वो शिफा पा जाए। ये यीशु के कदमों के ऊपर आकर रोता और चिल्लाता है, क्योंकि इसने यीशु की जात को जान लिया है, इसने यीशु की जात को जान लिया है। एक कनानी औरत, कलाम मुकद्दस में लिखा, उसकी बेटी के अंदर बदरू थी और वो यीशु के पीछे चिल्लाती है, इब्ने दाऊद, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी में बदरू है। यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी, यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि यीशु की जो बात थी थोड़ी सख्त थी। क्या लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दूं? किसी को कुत्ता कहना, किसी को हकीर जानना, किसी को निचले दर्जे तक ले जाना। लेकिन वो औरत झुक गई यीशु के सामने, उसने मान लिया, उसने जान लिया कि अगर मैं इसके सामने झुक जाऊंगी तो ना सिर्फ मेरी बेटी बल्कि मैं भी जिंदगी पा जाऊंगी। और वो यीशु के सामने झुक गई। उसने कहा, मालिक वो टुकड़े जो मेज से गिरते हैं कुत्ते खाकर असूला होते हैं, मुझे वो टुकड़ा ही दे दे। आमीन। उस औरत ने इस कदर खुद को झुका दिया, अपना दिल खाली कर दिया। एक और शख्स, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके बेटे में भी बदरू थी, मिर्गी की बदरू जो है उसको बचपन से सताती है। खुदा यीशु मसीह जलाली पहाड़ पर है, यूहन्ना, याकूब और पतरस साथ हैं, जहां पर वो मूसा और एलिया को देखते हैं। लेकिन नीचे वादी में 9 शागिर्द और उनके साथ और ईमानदार उस लड़के के अंदर से बदरू को निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं निकाल पाए। और जब यीशु वहां पर नीचे पहुंचा, उसने देखा बड़ी भीड़ है, तो उसका बाप लड़के का कहने लगा, यीशु मैं तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया अपने बेटे को, वो निकाल ना सके बदरू को, अगर तू कुछ कर सकता। उसने कहा, क्या अगर तू मेरे पास आया और फिर भी अगर मगर की बातें करता है, तेरे अंदर इत्काद नहीं, तू बेइत्काद है। जो मेरे पास आए वो इत्काद के साथ आए कि मैं यीशु के पास आया हूं, हो ही नहीं सकता कि यीशु मौजूदा ना करे। जब यीशु ने कहा तो उसको उसकी बेइत्कादी का पता चल गया। उससे पहले वो यही समझ रहा था, बड़ा ईमान है जी, मैं इस शागिर्दों को ले आया, शागिर्द भी नहीं काट सके। यीशु का जुमला, यीशु के अल्फाज, यीशु की बातों ने उसकी बेइत्कादी को बेनकाब कर दिया। कहता है, खुदा मेरी बेइत्कादी का भी इलाज कर दे। आमीन। यीशु ने उसके बेटे में से बदरू को निकाल दिया और वो शिफा पा गया। आमीन। वो शख्स ना सिर्फ खुद शिफा पा गया, उसका बेटा भी शिफा पा गया। वो कनानी औरत ना सिर्फ खुद शिफा पा गई, बल्कि उसकी बेटी भी। यार भी यहां पर आया है, उसकी बेटी बीमार है। एक और शख्स, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो गैर कौम का है, सूबेदार है, बहुत से लोग उसके अंडर हैं, लेकिन उसका दिल देखिए, कलाम में लिखा, वो अपने नौकर के लिए फिक्रमंद है। किसके लिए? आयदे मालिक नौकरां लिए फिक्रमंद नहीं होते। हाँ, गालियां निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, गुस्सा करते हैं, झिड़कते हैं, डांटते हैं। तुसी 99 काम अच्छे कर रहे, गलत कर दो ना 99 तो पानी फेर देना, तू तो हमेशा ही इंज करना। सर हमारा दिल टूट जाता कि यार मैंने अच्छे काम किए, सिर्फ एक ही नहीं किया, पानी फेर देता। ये शख्स, इसका दिल किस कदर नरम है, अपने नौकर के लिए फिक्रमंद है। किसके लिए? नौकर के लिए, कि यीशु के पास खुद चला जाता है, यीशु को कहता है कि तू मेरे नौकर को शिफा दे। उसने कहा, हाँ मैं तेरे घर आ। उसने कहा, नहीं तू जुबान से कह दे। उसका ईमान देखिए, वो यीशु को जानकर यीशु के पास आया है कि यीशु कौन है। यीशु के ताल्लुक से सुना कि यीशु कौन है, और वो यीशु के पास आया और कहता है, मेरे नौकर को शिफा दे। यीशु ने जब कलाम किया, उसका नौकर उसी घड़ी शिफा पा गया। उसने कहा, मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। ईमानदारों के अंदर, यहूदियों के अंदर ऐसा ईमान नहीं। गैर कौम के लोग ईमान रखते हैं। गैर कौम के लोग जब यीशु की जात के ऊपर गौर करते हैं तो वो जान लेते हैं कि यीशु कौन है, खुदा का बेटा है, वो खुदावंदों का खुदावंद, वो खुदा है। आमीन। यार भी अपनी बेटी के लिए आया। किसके लिए? ये जितने लोग जिनका मैंने जिक्र किया, कोई अपने बेटे के लिए आया, कोई अपनी बेटी के लिए आया, कोई अपने नौकर के लिए आया। क्या मैं और आप
अपनी फैमिली के लिए यीशु के पास आते हैं। कितनी फिक्र है हमें अपनी फैमिली की, कितना बोझ है हमारे अंदर। यार की बेटी मर रही थी, हमें एहसास नहीं, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग गुनाह के अंदर मर चुके हैं, यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं पहचानते। क्या हम यीशु के कदमों में आकर गिड़गिड़ाते, रोते, चिल्लाते हैं, ए यीशु मेरे घर चल। यार ने क्या कहा था, मेरे घर चल। हम तो अव्वल यीशु के पास इस ईमान से आते ही नहीं। हम आते हैं आज चर्च करना है, हाँ, दुआ करके आवांगे। अगर दुआ कर लांगे तो सारियां बुलावा टल जाएंगियां, दिन अच्छा गुजर जाएगा। हम बड़े कमजोर ईमान के साथ, बड़ी कमजोर उम्मीद के साथ, बड़े कमजोर भरोसे के साथ, बड़ी कमजोर आस के साथ खुदा के पास आते हैं। हमारी आस बड़ी कमजोर है, बड़े बुझे हुए, बड़े मायूस, बेदिली के साथ आते हैं, ईमान से भरे हुए नहीं, इत्काद के साथ नहीं। ये लोग जब यीशु के पास आए, इन्होंने यीशु की जात को फोकस किया। मैं और आप फोकस नहीं करते, इसीलिए तो मायूस और बेदिल आते हैं। अगर हम यीशु की जात को गौर करना शुरू करें तो हमें नजर आएगा कि खुदा बदन के अंदर मौजूद है। वो मेरे लिए और आपके लिए इस जमीन पर उतर आया है। बदन के अंदर खुदा आ गया है हमारे लिए, मुझे और आपको रिहाई देने के लिए, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, हमारे घराने को निजात देने के लिए, इस दुनिया को उलट पुलट करने के लिए हमारा खुदा बदन के अंदर आ चुका है। आमीन। हम किस कदर फिक्र रखते हैं अपने घराने के लिए। यार की बेटी करीबुल मर्ग थी, हम तो गुनाह के अंदर मरे हुए हैं। यीशु ने क्या कहा था, मुर्दों को अपने मुर्दे। एक तो वो शख्स जो जिस्म में मर चुका, लेकिन वो भी जो मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, यीशु क्या कह रहा है, मुर्दा है। हम अपने घर के अंदर बड़ा जश्न देख सकते हैं मुर्दों के जी उठने का। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे, जितने मुर्दे वो जिएंगे। क्या मैं और आप अपने घर के अंदर खुदा का कलाम जाके बोलते हैं ताकि वो सुने, ताकि मुर्दा जिंदा हो और हमारे घर के अंदर एक जश्न का समा हो। हम जश्न चाहते हैं, गेट टुगेदर, डीजे पार्टी। हम जश्न चाहते हैं, कोई म्यूजिक होवे, कोई टिक्का पार्टी होवे, कोई ब्याह होवे, कोई शादी होवे। हम इसका जश्न चाहते हैं, लेकिन ये जश्न नहीं चाहते कि मुर्दे जी उठे और वो खुदा की हम्द करें, वो खुदा की सिताइश करें। ये हो सकता है, ये मुमकिन है, अगर मैं और आप अपने मुर्दों के लिए खुदा के हजूर में रोएं और चिल्लाएं, उससे कहें, खुदावन तू मेरे घर चल, खुदावन तू मेरे घर चल, मेरे बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे घर के लोगों को तू जिंदा कर दे। ऐसा मुमकिन है, उससे कहें मेरे घर चल। अगर आज आप इस ईमान से आए हैं, कमजोरी की हालत में आए हैं, तो कमजोरी की हालत में जाइए मत, ईमान से भरे हुए जाइए, उम्मीद से भरे हुए जाइए। फैसला कीजिए, भरोसा कीजिए यीशु का, यीशु की जात को देखना शुरू कीजिए कि वो किस कदर जलाली खुदावंद है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके सर पर कलाम में लिखा बहुत से ताज है, उसकी रंग पोशाक पर यह नाम लिखा, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। वो खुदावंदों का खुदावंद है। उसकी जात को देखना शुरू कीजिए। जब मैं और आप उसकी जात को देखना शुरू करेंगे तो मायूसी चली जाएगी, नाउमीदी चली जाएगी, हम ईमान से भर जाएंगे। फिर पामे जेकर हड़ भी आवे नाले पानी, फिर हमें किसी शय की परवाह नहीं रहेगी। ये शख्स ईमान के साथ आया है, अपनी बेटी के लिए इससे फिक्र है कि मेरी एक ही बुढ़ापे की औलाद है, अगर ये मर गई तो क्या होगा, ये क्या होगा अगर यही बेटी मर गई। लेकिन यीशु ने इसको डांटा नहीं, यीशु ने इसको डांटा नहीं। उदों तो बड़ी मुखालफत करदा से, हुण की लेना है। अंकल ब्राउन यहाँ पर मौजूद है, हमारी बहन, उनकी साहबजादी यहाँ पर मौजूद है, हमारी बहन। खुदा उनके खादिम पास्टर विलियम क्राइस्ट के बहुत याद आते हैं मुझे। और वो वक्त जब मैं कैथोलिक इज्म में था, कैथोलिक ईमान में चलता था, तो पादरी साहब की बड़ी मुखालफत करता था। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि ये उस वक्त भी खुदा के उस खादिम के साथ, निजात के पैगाम के साथ चलते थे। यहाँ पर बिशप याकूब साहब और पादरी विलियम क्राइस्टकिल साहब कन्वेंशन करवाया करते थे। वो कन्वेंशन अटेंड करता था, मैं जाता था, कलाम सुनता, रोता और चिल्लाता था मैं, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे। लेकिन फिर गुनाह के अंदर तौबा की, फिर गुनाह के अंदर तौबा की, फिर गुनाह के अंदर गिर जाता था। लेकिन एक रोज मैं रोया और चिल्लाया, खुदा मुझे माफ कर दे। ये सन 1998 की बात है,
9वें महीने की 20 तारीख, ये बात दिल के अंदर चश्मा है, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। उस रोज एक एक बात जो बचपन से लेकर उस दिन रोज तक थी, एक एक बात ऐसे जैसे फिल्म चल रही है। मैं फिल्म देख रहा हूं, मैंने ये कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये क्यों किया। एक एक बात मेरे सामने चल उठी, रोया और चिल्लाया, खुदा मुझे माफ कर दे। यार यीशु के सामने टूट गया, यार यीशु के सामने टूट गया। अगर आप मायूस आए हैं, बेदिल आए हैं, ना उम्मीद आए हैं, यीशु के सामने टूट जाइए। लोगों की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग सुनकर क्या कहेंगे। लोग बातें करेंगे, यार लोटपोट हो रहा है, हम रोने से झिझकते हैं, हम अपना दिल नहीं उंडेलते, हम सिजदा करने से खुदा के सामने झिझकते हैं। यार नाला बैठा की कहेगा, एनू क्यों उंडे है, साथ वाला जो कुछ कहता है कहे, हम अपना दिल अपने खुदा के हजूर में उंडेल देंगे, क्योंकि अगर हम अपना दिल उंडेल देंगे तो वो आसमान से हमें नया दिल और नई रूह बख्श देगा। आमीन, हालेलुया। लोगों की परवाह मत कीजिए, खुदा के सामने रोइए और चिल्लाइए, मातम कीजिए, खुदा के सामने फट जाइए, किसी शख्स की परवाह न कीजिए, क्योंकि कोई शख्स मेरी और आपकी मदद नहीं कर सकता सिवा जिंदा खुदा के बेटे यीशु के। कोई मुझे और आपको रिहाई नहीं दे सकता सिवा जिंदा खुदा के बेटे यीशु के। फिर हम क्यों शर्माएं, फिर हम क्यों झिझके, फिर हम क्यों लोगों की फिक्र करें। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे, हम अपना दिल अपने जिंदा खुदा के हजूर में उंडेल देंगे। यार यीशु की मुखालफत करता था, मैं भी करता था, लेकिन एक रोज जब मैंने जान लिया, और आज जब भी मैं उस वक्त के गीतों को सुनता हूँ, गाता हूँ, तो रोता और चिल्लाता हूँ, खुदा वो वक्त, मैंने उस वक्त को ना पहचाना। कला में लिखा है, जिस रोज तुझ पर निगाह की गई तूने उस वक्त को, मैंने उस वक्त को ना पहचाना, लेकिन शायद वो मेरा वक्त उसके बाद का था। लेकिन जब मेरा वक्त आया मैंने खुदा को पहचाना जरूर। ये वक्त मुझे और आपको दिया गया है, इस वक्त को जानिए और पहचानिए। अपना दिल खुदा के हजूर में उंडेल दीजिए। जब यीशु यायर के साथ आया, यायर मिन्नतें करने लगा, मेरे घर चल, मेरे घर चल, मेरे घर चल। यीशु ने कहा खौफ न कर। लोगों ने आकर खबर दी तेरी बेटी मर गई है, उसे पता था आखिरी सांस चल रही है। यीशु के पास आकर बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी, बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन यीशु फरमाता है खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, तू मेरे पास आया है। वो जो मिट्टी से इंसान को बनाता है, वो जो मुर्दों को जिलाता है, तो उसके पास आया है। तू जिंदगी के मालिक के पास आया है। अगर तेरी बेटी मिट्टी में भी मिल जाए, मैं उसको वहां से भी उठा खड़ा करूंगा। आमीन। यीशु उसके साथ उसके घर गया, और यीशु का भी लोग मजाक उड़ाने लगे। लोग मजाक उड़ाते हैं ईमानदारों का, बातें करते हैं, ताने कसते हैं, बहुत सी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन खौफ ना कीजिए, फकत एतकाद रखिए, मेरे और आपके मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, वो खुदा पर ईमान ले आएंगे। अगर आज हम अपना दिल उंडेल दें। यायर की बेटी को यीशु ने कहा तलिता कुमी, ऐ छोटी लड़की मैं तुझे कहता हूँ उठ खड़ी हो, और वो उठ खड़ी हुई। आइए अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेल दीजिए ताकि हमारे मुर्दे जिंदा हो जाए। आइए, जब ईमान के साथ अगर नहीं आए, कमजोर उम्मीद के साथ आए हैं, तो कमजोर उम्मीद के साथ मत जाइए, ईमान के साथ जाइए। फैसला कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए अपनी फैमिली के लिए। खुदा ना सिर्फ जैसे यार खुद बच गया, बल्कि मैं भी बचना चाहता हूँ, मुझ पर भी रहम कर दे, मुझ पर भी फजल कर दे, मुझे और मेरे खानदान को बचा ले। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं और खुदा के हुजूर अपना दिल उंडेलना शुरू करें, अपनी आवाजों को बुलंद करना शुरू करें, दुआ मांगना शुरू करें, फैसला करें, खुदावन मेरे घर चल, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर चल। जब आप उससे कहेंगे मेरे घर चल, वो जाएगा, वो मुर्दों को जिलाएगा, वो हालात को बदल देगा, वो सोचों को बदल देगा, वो रवैयों को बदल देगा। फकत उससे कहिए मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे घर चल। खुदा उनसे कहिए मेरे घर चल। हालेलुया, हालेलुया।